اب بات کریں گے بہاولپور کی۔ بہاولپور میں عید پر بھی خود ساختہ مہنگائی کے ڈیرے۔ عید الفطر کی چھٹیوں کے باعث نئے ریٹ جاری نہ ہو سکے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں طاہر جوئیہ سے۔ بالکل جی، عید الفطر کے موقع پر سبزی منڈی بند ہونے کی وجہ سے جو سبزیات کی قیمتیں ہیں وہ بھی آسمان کو چھوتی نظر آ رہی ہیں۔ پچھلے 2 دن سے نیا ریٹ بھی نہیں نکل سکا ہے، جس کی وجہ سے جو ٹماٹر ہے وہ عام مارکیٹ میں نایاب ہوتا نظر آ رہا ہے، اور قیمتیں جو ہیں وہ عید سے قبل اور عید کے بعد سے ان میں بڑا ڈفرنس جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ دکاندار بھی موجود، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کیا کہیں جو اس میں جو نا دو دہاڑی دار ہے، تازی دہاڑی دار وہ مر جاتا ہے، باقی جس کے پاس ہے وہ تو ہے ہی، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ وہ دہاڑی دار اگر دہاڑی لگ گئی تو وہ صحیح ہے، چولہا جل جائے گا ورنہ چولہا نہیں جلے گا۔ اب آپ نے یہ کتنی سبزی لی ہے، کتنے پیسوں سے آپ کو ملی ہے، کتنے کی ملی ہے؟ سر یہ اب اس کے لیے لیبر کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ہم نان کا کام کرتا ہوں۔ اب 1 کلو آلو لیے ہیں، 13-14 بندے ہیں، تو پاؤ ٹماٹر لیا ہے، پاؤ پیاز لیا ہے، تو بس ایسے ہی وہ گزارے کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 300 بنا ہے جی۔ عید کا دوسرا دن، اب باری ہے میزبانی کی۔ ملتان میں خواتین کی جانب سے دوستوں کے ہمراہ دعوتوں کا سلسلہ جاری۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے الشفا آصف جی۔ الشفا بتائیے گا۔ جی بالکل، عید کے دوسرے دن بھی مہمان نوازی کا سلسلہ جاری ہے۔ گھروں میں مختلف پکوان بھی بنائے جا رہے ہیں، وہیں پہ خواتین جو ہیں عید کے جوڑے پہن کے اپنی دوستوں کے ہمراہ بھی ان پکوان کو انجوائے کر رہی ہیں۔ بات کرتے ہیں آگے چل کے ان سے کہ کیا کہنا چاہیں گی عید کے حوالے سے اور آج کا دن کیسے گزر رہا ہے۔ پہلا دن تو ظاہر ہے سب کا بہت مصروفیت میں گزرتا ہے۔ سیکنڈ ڈے پھر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اچھے دوست جو کھانے پکا کے بلاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ماوش اگین کہ انہوں نے بلایا، اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن آف کورس وہ والا مزہ نہیں ہے جو پچھلی عیدوں میں تھا، کیونکہ ہمارے دل بہت دکھے ہوئے ہیں فلسطین کی وجہ سے۔ لیکن ظاہر ہے عید منانا سنت ہے تو ہم منا رہے ہیں، لیکن بلکہ آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ یہ میں نے ایک جھنڈا بنانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہمارا پہلے پلان تھا کہ ہم نا سکارفز وغیرہ ضرور پہنیں گے، ایٹ لیسٹ کچھ چیز سمبولک ہونی چاہیے کہ عید تو ہم سنت کے طور پہ منا رہے ہیں، لیکن ہم ان کے دکھوں کو، غموں کو بھولے ہوئے نہیں ہیں اپنی عید کی خوشیوں میں۔ جی بالکل، فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے بھی یہاں پہ جو خواتین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اتنا پیارا انہوں نے مہندی کے ذریعے میسج دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا، آپ نے سب دوستوں کو انوائٹ کیا ہے، تو دوست کتنے ضروری ہوتے ہیں ایسے ایونٹس پہ؟ بھی الحمدللہ ایک دوسرے سے مل لی، اور یہ ایک ریلیکسیشن کا اللہ کی طرف سے جو ہمیں موقع ملا ہے، تو اس کے لیے یہ شاید ہمارے لیے پورا ایئر جو ہے وہ ایک چارج ہو جاتے ہیں ہم الحمدللہ۔ بس مغمور ہیں دل ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں کے لیے۔ اللہ ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے جو لوگ جا چکے ہیں اس دنیا سے ان کے درجات بلند کرے، اور انشاءاللہ ہم سب ان کو دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بچوں کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ بچوں نے اس بار بڑوں سے کتنی عیدی لی ہے بھائی؟ عید تو جی تہوار ہی بچوں کا ہوتا ہے، اور جب ہم بھی بچے تھے تب ہماری بھی یہی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ عیدی ملے۔ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اور اب ہمیں بچوں کو جو ہے وہ عیدی دینا پڑتی ہے۔ میری ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں، اور وہ تیاری شاری کر کے انہوں نے پھر اپنے بابا سے، میرے سے اور دادوں سے خوب عیدی جو ہے وہ وصول کی ہے۔ اور چھوٹی عید بیسیکلی ساری ہم سب کی خوشیوں کا جو ہے وہ تہوار ہے، اور ہم سارے مل بیٹھ کے جو اکٹھے ہوتے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آج جو ہے ہم یہاں پر ہمیں دعوت دی گئی ہے میم میوش کی طرف سے، اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ جی بالکل دعوت دی گئی ہے، اور اگر میرے کیمرہ مین ادھر دکھا سکے تو ادھر انویلپ ہے جس میں ابھی بچوں کو جو ہے عیدی دی گئی ہے، اور ادھر بہت ہی پیاری سی خوشبو بھی آ رہی ہے کھانے کی۔ اتنا پیارے سا کھانا بنایا گیا ہے اپنی دوستوں کے لیے خوش خلوص سے۔ جب دوستوں کے لیے انسان کھانا بناتا ہے عید کے موقع پہ تو وہ زیادہ ہی خلوص سے بنتا ہے۔ تو یہاں پہ جو خواتین ہیں اپنی انجوائمنٹ ان کی جاری ہے۔ عید کا دوسرا دن جو ہے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی ہیں۔ جی شکریہ الشفا آصف آپ کا۔ اب بات کریں گے فورٹ عباس کی۔ فورٹ عباس میں عید کا دوسرا روز جاری۔ عید کے دوسرے روز دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں عامر سکھیرا سے۔ بالکل آج عید کا دوسرا دن ہے، اور سیر سپاٹے جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ کچھ جو شہری ہیں وہ کل بھی سارا دن تفریح مقامات پہ رہے اور ہوٹلوں پہ رہے۔ آج بھی اب دوسرے دن دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو تفریح مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔ کوئی آئس کریم پارلر پہ ہے تو کوئی گیٹ ٹوگیدر کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ایک گیٹ ٹوگیدر جو ہو رہی ہے یہ کس سلسلے میں ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم جی، میں روڈ سے ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرا بھائی یہاں فورٹ عباس میں رہتے ہیں، وہ سعودیہ میں مقیم ہیں۔ یہاں ہم سب پوری فیملی
यहाँ इकट्ठी होकर सब यानी कि ईदों को दूसरा दिन हम खुशियाँ मना रहे हैं, ताकि ईद का खुशियों में हम दिन गुजारें इंशाअल्लाह ताला। जी, हमारे साथ मिशनरी मौजूद थे जो हमें बता रहे थे कि ईद का दूसरा दिन है। जो हमारे भाई जो परदेसी हैं वो सऊदीया में मकीम है, वो आए हुए थे, तो ईद के मौके पर इकट्ठा होना हमने समझा था कि ईद की खुशियों को दुबाला किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मियां आमिर आपका। रोहेला वाली में 10 साला नात ख्वां अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। मोहम्मद अब्दुल्ला नामी नन्हे नात ख्वां को लोग बड़े शौक से सुनते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मुजीबुर रहमान शामी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोहिला वाली के नवाई इलाके फैजपुर में, जहाँ हमारे साथ एक ऐसा नन्हा नात ख्वां मौजूद है जिसकी मधुर आवाज़ के लोग दीवाने हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि बेटा आप हमें बताइएगा कि आपका नाम क्या है और आपकी उम्र कितनी है, कब से आप नात ख्वानी कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। 6 साल का था तब नाता पढ़ता था। मेरे नातों को बहुत अच्छा पता है मुझे, लोग बहुत मुझे सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो 6 साल का था, अब 10 साल मेरी उम्र है, मैं अभी भी नाता करता हूँ। जी बिल्कुल, आपने सुना कि उन्होंने 6 साल की उम्र में नात ख्वानी शुरू। मुल्तान में मीठी ईद को मजीद मीठा बनाने के लिए शहरियों ने स्वीट शॉप्स का रुख कर लिया। मिठाई खरीदने के लिए शहरियों का बेकरी और स्वीट शॉप्स में रश। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। मीठी ईद के दूसरे रोज शहरियों ने मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी मेहमानों को पेश करने और दोस्तों अजीज रिश्तेदारों को तोहफे देने के लिए मिठाई खरीद रहे हैं। शहरी कहते हैं कि ईद के दिन मिठाई दोस्तों को तोहफे के तौर पर भी देते हैं। मीठी ईद पर मिठाई ना खरीदें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज ईद का दूसरा दिन है, आज जो है ना ससुराल डे, आपको पता है, बस ससुराल के लिए मिठाई लेके जा रहे हैं। इनकी मशहूर है मिठाई, इनकी शुरू से हम इनसे लेते हैं, बस माशाल्लाह ससुराल के लिए लेके जा रहे हैं। शहरियों का कहना था कि ईद का दूसरा रोज ससुराल का दिन होता है, इसलिए बेगम की फरमाइश पर मिठाई खरीद रहे हैं। अब ससुराल जाएंगे। सेकंड डे आपको पता है ससुराल डे होता है। अभी सुबह सुबह उठा हूँ तो बेगम ने झंझोड़ा है कि ससुराल जाना है, और तो उसके लिए मैं मिठाई लेने आया हूँ। तो एक अच्छी सौगात है, मीठी ईद है, तो मीठी ईद पे जो है फेनिया के साथ और शीर खुरमा के साथ वो भी खाया जाता है। और इसके साथ जो मिठाई है, मिठाई जो है तोहफे तोहफे में दी जाती है, तो इसलिए मिठाई लेने आए मैं, ताकि एक अच्छी से ईद बना सके, सेलिब्रेट कर सके। मुल्तान शहर में मिठाई की दुकानों पर चांद रात से ईद के तीसरे रोज तक रश लगा रहता है। कैमरामैन हारून रमजान के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब के अवाम ने ईद का दूसरा दिन भी भरपूर अंदाज से मनाया। ईद को यादगार बनाने के लिए बच्चों ने फैमिलीज के हमरा पार्कों का रुख किया, जबकि मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीठी ईद की खुशियों को दुबाला करने का मिशन, बच्चों ने फैमिलीज के हमरा पार्कों का रुख कर लिया। ईद के दूसरे रोज कोट मिठन के पार्कों में भी रश है। ख्वाजा फरीद पार्क में ईद मेले के लिए मुख्तलिफ इकसाम के झूले सजा दिए गए। शहरियों का कहना था कि आज ईद का दूसरा रोज है, बच्चों की फरमाइश पर पार्क आए हैं, बच्चों के साथ ही ईद की खुशियां होती हैं। दायरा दीन पनाह में भी ईद के दूसरे रोज शहरी सैर सपाटे के लिए निकल पड़े। तफरीही मुकामात पर शहरी खूब ईद के मजे लूटने में मसरूफ नजर आए। उधर फोर्ट अब्बास में ईद के दूसरे रोज मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी है। खानों के साथ साथ दोस्तों और रिश्तेदारों की गपशप का भी सिलसिला जारी है। फोर्ट अब्बास गंदम के कम रेट पर किसान तबका परेशान। इस हवाले से मजीद जानते हैं आमिर सुखेरा से। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त एक निजी मैरिज हॉल में, जहाँ पे आज मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और गंदम के रेट के हवाले से जो एक एहतजाज की कॉल दी गई। और वेरी नेक्स्ट जो लाहौर प्रेस क्लब के अंदर एक एहतजाज किया जाएगा और उसके बाद अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाट, उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि सर क्या लाहे अमल है, एहतजाज होगा और उसके बाद क्या नेक्स्ट प्लान है? जी बहुत शुक्रिया रोही का। हमारा ये है कि हम पीर के रोज़ हमारी एक किसान इत्तेहाद की मरकजी मीटिंग और सबाई मीटिंग होगी। उसमें हम पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रेस क्लब लाहौर में, और उस प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद जो है वो मेरी गंदम का रेट है जो 3900 है, जो पिछले साल 4000 था, इस दफ़ा 3900 है। और जनूबी पंजाब में गंदम ऑलरेडी पूरी की पूरी तकरीबन 90-80% निकल के आ गई है। गवर्नमेंट ने खरीदारी शुरू नहीं की। गंदम इस टाइम 3000, 2800-3200 से ऊपर बिक नहीं रही। किसान पिछले साल यही गंदम का रेट 4000 था, खाद का रेट 3500 था, डीएपी सस्ती थी, डीजल सस्ता था, और अब वो चीजें डबल होने के बावजूद भी गवर्नमेंट पंजाब ने गंदम का रेट
4,000 जो मेरा पिछला था, इस दफा उन्होंने 3900 रखा है, उसके बावजूद भी वे खरीद नहीं रहे। इस हवाले से हमारी लाहौर में कफन पोश प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें हम एहतजाज करेंगे और लाए अमल का ऐलान करेंगे कि किस दिन सारे किसान इकट्ठे होकर पंजाब असम्बली के सामने धरना देंगे, और वो धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। जी, हमारे साथ मौजूद थे मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद के खालिद बाट साहब, जो हमें बता रहे थे कि जो लाहौर प्रेस क्लब में जो कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर कफन। मुल्तान में ईद के दूसरे रोज शहर की ट्रैफिक शाम होते ही बदतरीन जाम। एसपी चौक, सईदांवाला बाईपास, रशीदाबाद और सदर समेत मुतअद्दिद चौराहे बंद। ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। आपको बताते हैं मुल्तान में ईद के दूसरे रोज शहर की ट्रैफिक शाम होते ही बदतरीन जैम हो चुकी है। एसपी चौक, सईदांवाला बाईपास, रशीदाबाद और सदर समेत मुतअद्दिद चौराहे बंद। ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बात करेंगे मीठी ईद का दूसरा दिन। मुल्तान में बुजुर्गाने दीन से अकीदत रखने वाले अफराद हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी देने पहुंच गए। ज़ायरीन की कसीर तादाद ने मज़ार पर अपनी मन्नतों मुरादों के लिए दुआएं भी मांगी और नजराने भी पेश किए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान ज़मीर। मीठी ईद की मीठी खुशियां। मुल्तान में शहरियों ने ईद का दूसरा रोज भरपूर अंदाज से मनाया। अकीदतमंदों और ज़ायरीन की कसीर तादाद हजरत शाह रुकन आलम के मज़ार पर पहुंच गई। अंदरून और बैरून शहर से आए अफराद ने मज़ार पर हाजिरी दी। बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी कसीर तादाद मज़ार पर मौजूद है। मज़ार इंतजामिया का कहना है कि हजरत के मज़ार पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं और मन्नतें मुरादें मांगते हैं। हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह शहर औलिया के बड़े रूहानी पेशवाओं में से हैं। शाह रुकन आलम मुल्तान की सबसे बड़ी औलिया किराम की दरगाह है। यहाँ पे लोग बहुत अकीदत से कसीर तादाद में आते हैं। कल ईद की बहुत कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। उसके लिए इंतजामात हमारा महकमा औकाफ बहुत अच्छे इंतजामात करते हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं। बहुत लोग आते हैं सर, हज़ारों की तादाद में रोज़। आप रश देख रहे हैं दरगाह पे, इस वक्त बहुत रश है। लोग बहुत कसीर तादाद में आते हैं और बड़ी अकीदत के साथ आते हैं। ज़ायरीन का कहना है कि पहला दिन घर वालों के हमरा बनाया, आज दूसरा दिन अपने पीरों मुर्शिद के साथ मना रहे हैं। दिली सुकून की खातिर हम मज़ार पर आते हैं, जिससे हमें रूहानी सुकून महसूस होता है। अपने बेटे की दुआएं मांगने आया हूँ, अल्लाह से बेटा दे दे, और अपनी माँ बाप के लिए भी दुआ करना है। वो मजदूर हैं, कटड़े पर बैठे हैं, उनके लिए शाह रुकन आलम दरबार पे आए हुए हैं, दुआ करना है। सर मदद मांगने आए हैं, हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं। मुल्क के हालात आजकल बहुत ख़राब जा रहे हैं और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे। बहुत महंगाई हो गई है सर, बड़ी मुश्किल से आए, बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज करके आए।